بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لا اینڈ وزڈم۔ آج ہم بات کریں گے علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے اس کا کیا رول ہے، اس کے کیا آبجیکٹیو ہیں، اس کے کیا امپیکٹس ہیں، پولیٹیکل، ریلیجس، سوشل اسپیکٹس کیا ہیں، اور اس موومنٹ کی وجہ سے پاکستان کو بننے میں کیا مدد ملی۔ پاکستان جو وجود میں آیا، پاکستان جو ایک نیا کنٹری بنا، اس کے اندر اس موومنٹ یا علی گڑھ تحریک جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، اس کا کیا عمل دخل ہے، اس کا کیا رول ہے، یہ سارا کچھ دیکھیں گے۔ یہ بہت اہم کوسچن ہے دوستو۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اندر یہ کوسچن بہت مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈیز LLB پارٹ 2 کے اندر بھی یہ کوسچن 2 سے 3 مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ سو یہ بڑا آسان کوسچن ہے، اس کو آپ نے ضرور تیار کرنا ہے۔ سو چلیں آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیں، ہم اگر انٹروڈکشن کی بات کریں، دیکھیں ہوا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ برٹش نے ایکچولی قبضہ کیا سب کانٹیننٹ پہ، اور اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی، مغلوں کی حکومت تھی۔ اور 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس جب ہوئی تھی تو اس میں بھی زیادہ تر یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ مسلمانوں نے ایکچولی بغاوت کی، یہ کیا وہ کیا، جو بھی جنگ لڑی گئی تھی۔ تو اس سے ہوا یہ کہ مسلمانوں اور برٹش کے بیچ میں جو انگریز تھے، برطانیہ سے آئے تھے، ان کے بیچ میں ایک قسم کی ایک دوری ہو گئی، مسٹرسٹ بڑھ گیا۔ اور یہ انگریز جو ہے مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ بھائی یہ فساد کی جڑ یہی ہیں، ان کی وجہ سے سارا انریسٹ ہوتا ہے، یہ جو ہے بغاوت کرتے ہیں، ہمارے خلاف آتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، یہ وغیرہ اس طرح۔ تو اس سارے سین میں ہوا یہ کہ جو اس وقت کے ہندوز تھے وہ جو ہے برٹش کے قریب ہو گئے۔ برٹش راج جو گورنمنٹ تھی، کیونکہ سب کانٹیننٹ پہ کس کی حکومت تھی دوستو اس وقت برٹش راج کی، یہ برٹش کے جو لوگ تھے، انگریز تھے، ان کی حکومت تھی سب کانٹیننٹ کے اوپر۔ تو ہندوز ان کے کلوز ہو رہے تھے، جابز بھی لے رہے تھے، پولیٹیکل ایکٹیو بھی تھے۔ مسلمان بالکل سائڈ پہ ہو گئے، اگنور کر دیا گیا، کوئی لفٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دن بدن ہم جو ہے ہمارا ڈاؤن فال ہونا شروع ہو گیا، اور ہم بالکل جو ہے کہیں کسی کونے میں جا کے گر گئے۔ ہمیں کوئی پوچھتا، نہ ہمیں کوئی اچھی جاب دیتا، نہ ہمیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت تھی، مطلب کچھ بھی نہیں، اور برٹش ہمیں ویسے بھی برا مانتے تھے بہت۔ تو اس ساری موومنٹ، اس سارے چکر میں ہوا یہ کہ اس وقت سر سید احمد خان صاحب نے ایک تحریک شروع کی، علی گڑھ موومنٹ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کسی طریقے سے مسلمانوں کے بیچ میں یا مسلمانوں کا جو رول ہے، جو ان کا اسٹیٹس ہے، اس کو بڑھا دیا جائے، ان کی ایجوکیشن بڑھا دی جائے، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور جو پولیٹکس ہے اس کو امپروو کیا جائے، بہتر کیا جائے۔ سو یہ ساری کوششیں جو ہوئی تھیں وہ علی گڑھ موومنٹ کے ہی ذریعے ہوئی تھیں۔ اگر یہ موومنٹ نہ ہوتی تو شاید پاکستان بھی نہ بنتا۔ سو یہ تو میں نے آپ کو اس کو ذرا انٹروڈکشن بتا دیا کہ حالات بہت اب برے چل رہے تھے۔ برٹش جو لوگ تھے وہ مسلمانوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے، ان کو بہت برا مانتے تھے، بیچ میں ان کی بڑے مسٹرسٹ چل رہے تھے اور ان کو اچھا نہیں مانتے تھے، جبکہ ہندوز تھے وہ ان کے زیادہ کلوز ہو رہے تھے، ہم ان سے دور ہو رہے تھے۔ سو اسی لیے پھر ہم نے ایک موومنٹ شروع کی علی گڑھ، تاکہ ہم جو ہے خود کو بہتر کریں، امپروو کریں، تاکہ ہمیں بھی جابس ملیں، تاکہ ہم بھی اپنی جو ہے پولیٹکس میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ اچھا جی، تو اب ہوا یہ کیا، اس کی جو شروعات کس طرح ہوتی ہے، وہ ہوتی یہ ہے کہ سر سید احمد خان صاحب نے جو ہے ان کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار اگر مسلمانوں نے آگے ترقی کرنی ہے تو بھائی صاحب انہوں نے برٹش کے ساتھ چل کے، یعنی کہ مل کے چلنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور اس کے لیے ان کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ جو برٹش کی جو تعلیم تھی اس زمانے میں، جو ماڈرن ایجوکیشن تھی، اس کو انہوں نے پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اور ماڈرن ایجوکیشن کو جو ہے اس کو یوز کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ زیادہ تر ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن تھی یا ریلیجس ایجوکیشن تھی، جس طرح عربی، فارسی، قرآن سننا، اس کی جو تعلیم اس کے پہ زیادہ فوکس تھا۔ ماڈرن ایجوکیشن، فزکس، کیمسٹری، یہ وہ وغیرہ ساری چیزیں نہیں پڑھتے تھے، اور انگلش کو تو بالکل نہیں پڑھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ فرنگی کی زبان ہے، ہم بھی شاید ان کی طرح کرسچن بن جائیں گے، یہ بن جائیں گے۔ سو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جناب علی گڑھ جو ہے اس کی جو شروعات کی وہ سر سید احمد خان صاحب، انہوں نے کہا نہیں بھائی، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اپنی ایجوکیشن بہتر کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ماڈرن کرنا پڑے گا، ہمیں ویسٹرن کی جو نالج ہے اس کو حاصل کرنا پڑے گا، تو پھر ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ پھر اس کی شروعات کس طرح ہوئی، اس کی ہسٹری دیکھیں تو اس لیے سر سید احمد خان صاحب نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے جناب ایک مراد آباد میں اور اس کے بعد غازی پور میں اسکولز بنائے۔ اسکولز کے بعد پھر جناب 1869 کو وہ UK میں چلے جاتے ہیں، انگلینڈ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ آکسفورڈ، برٹن، کیمبرج یونیورسٹیز ان کا وزٹ کرتے ہیں، ان کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر، ان کا کریکولم، ان کا سیلیبس، یہ ساری کچھ چیزیں۔
सो ये सारी चीज़ें सीख कर सर सैयद अहमद खान वापस भारत आते हैं। उस वक्त का जो सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे आते हैं और फिर आके जनाब वो अलीगढ़ में एक स्कूल बनाते हैं। उसके बाद फिर उसको स्कूल को आगे बढ़ा के एक जो है ना उसका नाम था MAO मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल्स, उसको फिर कॉलेज का स्टेटस दिया गया। और बाद में फिर 1920 में वो जो कॉलेज था वो आगे चल के एक यूनिवर्सिटी बन जाती जिसका नाम रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन उस वक्त जो थे सैयद अहमद खान दुनिया से रुखसत हो चुके थे, तो वो उन्होंने जो है ना वो जो यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब देखा वो अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा, लेकिन आगे वो चल के ज़रूर जो है ना वो जो है ना सामने हमें नज़र आता है। अच्छा ये देखें, ये है अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये सामने से एक बिल्डिंग देखें, ये आज भी मौजूद है उत्तर प्रदेश में इंडिया के अंदर, और इसको सैयद अहमद खान ने ही एस्टेब्लिश किया था। ये जनाब इनकी एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की, बाबे सैयद अलीगढ़ यूपी के अंदर है। अगर आपको कहीं जाना हो तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये इसकी एंट्रेंस है। और वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद भी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस ये मस्जिद है और ये भी इसके साथ है। सो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया अलीगढ़ मूवमेंट की आपका ये सारा ये जो हिस्ट्री। अब हम इसका देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि मुसलमानों की मदद करनी है ताकि वो अपना खोया हुआ मकाम जो थी, डिग्निटी थी माशरे के अंदर, उसको हासिल कर सकें और लेटेस्ट एजुकेशन, मॉडर्न और वेस्टर्न एजुकेशन वो हासिल कर सकें, और ताकि वो मज़ीद सोशल एक्टिव हों और ज़्यादा और माशी तौर पे इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ज़्यादा तगड़े होंगे। देखें अगर आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल करेंगे तो फिर आपको जॉब्स भी मिलेंगी, आप टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो आपको ज़्यादा यानी कि आप अच्छे से कमा सकते हैं, खा पी सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें, और फिर उससे ये होगा कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मुलाजिम भी बन सकते हैं। उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ना, अगर आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको कैसे जॉब मिलेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा जी, सो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव था और उसका रोल यही था कि भाई किसी तरीके से मुसलमानों की जो लाइफ है वो बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि मुग़लों के डाउनफॉल के बाद ब्रिटिश राज ने पूरा कंट्रोल कर लिया, तो फिर मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते थे, मुसलमानों की फेवर में कोई बात नहीं करते थे। वो मुसलमान बेचारे दब के गए थे, बिल्कुल कहीं कोने में जाके बैठ गए थे और उनकी कोई सुनता नहीं था, उनको इग्नोर कर दिया गया, उनके साथ ज़्यादतियाँ भी होती थी, जुल्म होती थी, उनको जॉब्स नहीं दी जाती थी। सो जो मेन रोल था अलीगढ़ मूवमेंट का वो ये था कि भी किसी तरीके से एक ऐसा किरदार या ऐसी किसी तरीके से मुसलमानों की जो हालत है ना उसको बेहतर किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए। अब हम इसके देखते हैं कुछ एस्पेक्ट्स। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। आप इसको पॉलिटिकल रोल ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट भी कह सकते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट ने पॉलिटिक्स में हमारे लिए क्या मदद की। तो सबसे पहले तो भाई इन्होंने हमें अवेयरनेस दी कि भाईजान अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम को समझना पड़ेगा कि वहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरह चलती है, वहाँ पे पार्लियामेंट किस तरह बनती है, कानून साजी किस तरह बनती है, वहाँ पे इलेक्शन किस तरह बनते हैं। ये सारी चीज़ इन्होंने अवेयरनेस दी, मुसलमानों को बताया और मुसलमानों को ट्रेंड भी किया और गाइड भी किया कि भाई आपने अपने हकूक़ के लिए किस तरह लड़ना है। हर वक्त तलवार नहीं उठानी होती, बाज़ों का तो आपने डेमोक्रेटिक अपने अल्फाज से, अपने अपने आर्गूमेंट से भी जंग जी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रेनिंग मिली ना, देखें हमारे बड़ों ने जो पाकिस्तान बनाया था, वो जो जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनको ट्रेनिंग किसने दी? उनको अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ट्रेनिंग दी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये हुआ था कि क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कि ब्रिटिश और मुसलमानों के बीच के रिलेशन बड़े ख़राब हो चुके थे और ब्रिटिश में जो लोग थे ना अब मुसलमानों को लिफ्ट नहीं कराते, तो बड़ा उनको बहुत बुरा मानते थे। तो उस हवाले से अलीगढ़ मूवमेंट ने क्या किया, एक मैगज़ीन जनाब उन्होंने पब्लिश किया, द कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, और उसमें उन्होंने लिखा कि भाईजान 1857 की जो वार हुई थी उसके पीछे हम नहीं थे, मतलब हमारे साथ हिंदूज़ भी थे, दूसरे लोग भी थे, आप सिर्फ हमें ही समझते थे कि हमने ये सारा यानी कि ये जो किया हमारा इसमें कोई रोल प्ले, हमारा ख़ास रोल नहीं है। हम तो आप लोगों के वफ़ादार रहना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी आप लोगों के साथ गवर्नमेंट में जॉब करें, मॉडर्न बने, एजुकेशन लें, हम भी चाहते हैं कि हम भी एक्टिव हों, हम भी बड़े शरीफ लोग हैं, हम नहीं चाहते कि अनरेस्ट हो मुल्क के अंदर या खून खराबा हो। तो वो सारा उन्होंने बताया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस तरह इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1867। इन एसोसिएशन का मकसद ये था कि ताकि किसी तरीके से जो ब्रिटिश के लोग थे उनको कन्विंस किया जाए, उनके साथ मिल बैठ के उनको बताएं भाई हम इस तरह इतने बुरे भी लोग नहीं हैं, मुसलमान या जो तुम लोग हमें समझते हो ऐसा ना करो। अगर आप हिंदूज़ को भी जॉब्स देते हो, उनको स्टेटस देते हो, उनको बिठाते हो, उनके ऊपर यकीन रखते हो, तो हमें भी उतना दो, हमें भी एजुकेशन दो, हमें भी तालीम दो, हमें भी जो है ना सियासत करने का हक दो।
अच्छा जी, उसके बाद एक और अहम मामला हुआ था, उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी बड़ी हुई थी। उसके अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि जो है हिंदी उर्दू को ख़त्म कर दें, हिंदी को रिप्लेस कर दें, इस तरह के मामला चल रहे थे। तो उसमें भी सर सैयद अहमद खान और इन्होंने जो अलीगढ़ मूवमेंट का जो प्लेटफॉर्म था, इसको बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया और गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि नहीं जनाब, ये जो है ना जो है ना उर्दू बहुत ज़रूरी है, उर्दू जनाब एक जो है ना अच्छी ज़बान है और सब इसको समझते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि जितना भी वेस्टर्न कल्चर था ना इंग्लिश के अंदर, उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया ताकि आम बंदा, जो उस वक्त का जो बंदा था मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट में रहता, ताकि वो समझ सके। इसके अलावा जी टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमें अलीगढ़ मूवमेंट से मिलता है। और टू नेशन थ्योरी क्या है? वो ये थ्योरी है कि भाईजान मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौम है, ये दोनों आपस में नहीं रह सकते। और ये थ्योरी भी हमें सर सैयद अहमद खान के ही जो उन्होंने ही ये पेश की, सो जारी हुई। इसी थ्योरी की बुनियाद पे हमारा 1947 के अंदर पाकिस्तान बना था। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसके एजुकेशनल एस्पेक्ट्स। एजुकेशन के अंदर इन्होंने क्या खिदमत की? सबसे पहले तो इन्होंने स्कूल्स बनाए जी, मुरादाबाद में, गाज़ीपुर में, फिर एमए स्कूल 1874 में। वो जो स्कूल था फिर आगे चल के आपको पता है, मैं जिस तरह बता चुका हूँ, वो कॉलेज बन गया। कॉलेज से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। इसके अलावा जी मॉडर्न एजुकेशन को इन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया, उन्होंने जो है ना फ़रोग दिया, मॉडर्न एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न एजुकेशन है, इसको ऊपर ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, जिस तरह आजकल हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स में सोसाइटीज़ नहीं बनी होती। हमारे यहाँ एक कॉलेज है नेशनल लॉ कॉलेज, वहाँ पे इस किस्म की कुछ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, स्पोर्ट्स की, डिबेट की, इस तरह की। तो ये हर जगह होती हैं, आपको पता है, यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस तरह की इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटीज़ बनाई। इसका मकसद यही था, काम ये था कि भाई जितने भी वेस्टर्न लिटरेचर है, इंग्लिश बुक्स हैं अंग्रेज़ों की लिखी हुई, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है ताकि आम मुसलमान बंदा भी उसको समझ सके। इसके अलावा एक उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। जिस तरह न्यूज़पेपर होता है डॉन, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, ये देखें ना, ये न्यूज़पेपर्स हैं, जंग, दुनिया न्यूज़। इस तरह इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, अखबार निकाला 1866 में, जिसके अंदर वो जितने भी मामले थे, सोशल मामले होते थे, वो लोगों के, मुसलमानों के प्रॉब्लम्स थे सब कॉन्टिनेंट के, उसके बारे में लोगों को वो यानी कि अवेयरनेस देते थे, बताते थे। इसके अलावा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, एक इन्होंने एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक इदारा बनाया था, जिसका मकसद ये था कि उसके अंदर कॉन्फ्रेंस की जाती थी, एजुकेशन की बात की जाती थी, एजुकेशनल सिस्टम को किस तरह इम्प्रूव किया जाए और किस तरह मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दी जाए और उनकी जो है ना उनका जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जाए। ये सारी चीज़ें एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की जाती थी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स अलीगढ़ मूवमेंट के। जनाब ये भी बड़ा एक अहम रोल था। हुआ ये था कि एक बड़ा बदबख्त और बदतमीज़ इंसान था विलियम मुयर, उसने एक बुक लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम पे, और वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बुक थी। तो उसको काउंटर करने के लिए जनाब एक गोरे ने बुक लिखी थी, जॉन जॉन डैमपोर्ट ने, एन अपॉलॉजी फॉर मोहम्मद एंड मोहम्मदन्स। और ये जो बुक थी ये किसने पब्लिश की थी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने ही, उनके प्लेटफॉर्म से ये हुई थी। इसके अलावा जनाब एक और जो किताब थे, उसी मज़ीद एक और किताब खुतबत अहमदिया के नाम से एक मज़ीद किताब बनाई गई, और उसकी जो बुक थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसको मतलब बताया गया कि भाई साहब जो आपने बातें लिखी वो सब गलत हैं, ऐसी कोई नहीं है, और वो सारी चीज़ें थी वो क्लियर कर दी गई। इसके अलावा जनाब तहज़ीबुल इखलाक हो गए, तबीन अल कलाम हो गया, ये सारी किताबें भी, रिलीजियस बुक भी अलीगढ़ मूवमेंट के ज़रिए से हमें मिलती हैं। इसके अलावा जनाब ये हुआ था कि जितने मुसलमान बच्चे जो यतीम हो जाते थे वो पहले क्रिश्चियन मिशनरीज़ के पास जाते थे, और डर होता था मुसलमानों को, यार ये क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो फिर उसके लिए अलीगढ़ मूवमेंट ने क्या किया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया कि उन्होंने भी एक इदारे इस तरह के बनाना शुरू किए, ताकि लोगों को यहाँ पे ना यतीम खाना बनाना शुरू किया, ताकि जो मुसलमानों के ये बच्चे हैं वो यहीं पे हों, यहीं पे उनकी देखभाल हो। अब हम देखते हैं कि इसका रोल क्या है। देखें, अब अलीगढ़ मूवमेंट में देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने काम किया। तो उससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस मिलना शुरू हो गई, और वो आगे चल के एक मुस्लिम लीग बन जाती है। और तो मुस्लिम लीग जो एक मुसलमानों की जमात थी, जिसने जाके पाकिस्तान के लिए फ़ाइट की और पाकिस्तान एक नया मुल्क वजूद में आया, उसके पीछे अगर देखा जाए तो वो अलीगढ़, वो जो मुस्लिम लीग का जो वजूद था ना, उसके अंदर जितने भी लीडर थे, ये जितने भी बड़े लोग थे, वो दरअसल मुस्लिम लीग के ही पढ़े लिखे लोग थे, उन्हीं के स्टूडेंट थे। एक बड़ी मशहूर बात है, वो एक बड़े एक हमारे यहाँ स्कॉलर हैं, मुझे नाम नहीं याद रहा एग्जैक्टली, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फेसबुक पे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो था ना वो अलीगढ़ के लोंडो की शरारत है। हाँ जी, ये अलीगढ़ के स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने जाके आगे पाकिस्तान बनाया, और उन्होंने आगे चल के मुस्लिम लीग बनाई। तो मुस्लिम लीग के बनाने के अंदर या उसकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अलीगढ़ मूवमेंट का बहुत बड़ा अहम रोल है, ठीक है। और इसका वजूद तब आया था कि एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अली, तो उसी में ना ढाका के अंदर 1906 के अंदर उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान हुआ कि भाई हम मुसलमान अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा था मुस्लिम लीग।
अच्छा जी, अब हम इसके देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़े। अब देखें, सबसे पहले जो मुसलमानों और ब्रिटिश के बीच में जो मिसट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया। मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो गई मुसलमानों को। मुसलमानों के जो माशी हालात थे, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई। इसके अलावा जना उर्दू लैंग्वेज को प्रोटेक्शन मिली। क्या किया इन्होंने, ये किया ना, साइंटिफिक सोसाइटी के तहत उन्होंने जितनी भी इंग्लिश का लिटरेचर था, बुकें थी, उनको उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू की। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है, जो इतनी प्यारी और खूबसूरत लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्शन मिले, उसको प्रमोशन मिला। इसके अलावा पॉलिटिकल अवेयरनेस मिली, हमें पता चला, हमें टू नेशन थ्योरी का हमें यहाँ से पता चलता है। मुसलमानों की कम्युनिटीज़ ग्रुप्स बनना शुरू हो गए, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना लिटरेचर की, बिल्कुल इसी तरीके से फिर जनाब इसी मूवमेंट के तहत हमारी मुस्लिम लीग बनती है। उसके अलावा फिर लीडरशिप सामने आती है। बड़े बड़े लीडर जो थे वो मुस्लिम लीग जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और उन्होंने यानी कि ये स्टूडेंट्स को उन्होंने ये एक नर्सरी थी जिसने हमारे लीडर्स को तैयार किया। और इसके अलावा जो हमारा एक स्टेटस था जो हम खो चुके थे मुग़लों के जाने के बाद, उनके डाउनफॉल के बाद, वो हमारा स्टेटस बहाल हो गया। इसके अलावा अब ये तो हमने देख लिया, अब इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस भी देखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तनकीद करते थे उस ज़माने में, वो कहते थे अलीगढ़ मूवमेंट का सारा फोकस मॉडर्न एजुकेशन पे था, रिलीजियस एजुकेशन पे बिल्कुल फोकस नहीं था। तो ये उनके ऊपर कंट्रोवर्सी थी। तो इस हवाले से फिर देखा जाए तो उसके उस ज़माने में और भी बड़े ना इस तरह के एजुकेशनल मूवमेंट शुरू हुई थी। जैसे देवबंद में जो देवबंद एक स्कूल ऑफ थाट है, और एक मदरसा भी है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो उस तरह के और भी जो है ना इंस्टीट्यूशन जो है ना वो बनने शुरू हुए, जिन्होंने इस चीज़ को ना फिल किया, यानी कि उन्होंने उनका ज़्यादातर फोकस रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर था। सो अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर ये बड़ा एक क्रिटिकल एनालिसिस है और तनकीद होती है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं ये बता दूं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत कोशिश की जितना हो सके बिल्कुल आसान अल्फाज और भाषा में आपको समझाऊँ, और इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर तैयार करना है एग्जाम्स के अंदर। सो तब तक मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।